Assalamu alaikum, dear students. I hope everyone among you will be fine. Today we are going to discuss this important concept in genetics, that is multiple allelism. In this topic we are going to first discuss what does multiple allelism mean. Then we will distinguish this multiple allelism from polygenic inheritance, and then we are going to discuss the physiology of this very important concept, that is ABO blood grouping. Now let us start. I have told you कि this gene is basically a segment of, it is basically a segment of DNA that codes for a protein, and protein is able to control a particular type of phenotype, and phenotype means the physical appearance of an organism. Now if we talk about a gene, each gene has basically got two copies. Those two copies are basically called beta alleles. They are basically called alleles. And what does basically allele mean? Allele is simply defined as an alternative form of a same gene. But you will just keep in mind that these alternative forms of the gene, they are basically created by a very important evolutionary process, that is basically called the mutation is an agent that is responsible for the creation of these multiple alleles. You'll just keep in mind. Now for example, we will take the example of, say, plant height. Plant height is basically controlled by two alleles. Gene will be their same, but that gene basically possesses two alleles. One allele is represented by the capital T, second allele is represented by the small t. These alleles, they will also try to make their respective protein, and this capital T, it will character which type of it will control what, it will control the tallness, character, while as the small t, it will control the dwarfness, that means short stature. This tallness is basically a dominant trait, or this dwarfness is basically a recessive trait. Same is the example. For example, we'll another example. For example, we will take the example of, say, seed shape. Seed shape is again controlled by two important alleles. Gene, again there will be same, but that gene basically has got two copies, and those two copies are basically called alleles. For example, one will be the capital R, second one will be the small r. Capital R, it will be responsible for controlling the roundness, and this small r, it will control the wrinkled appearance of a seed. So this is basically the normal scenario of what we call as a gene. So every gene has basically got two copies. Those two copies are basically called the alleles. Now what does multiple allelism का क्या मतलब हुआ? फिर से आपके पास जीन है. अब when a gene is basically represented, by more than two alleles, when a gene is represented by more than two alleles. लेकिन यहाँ आप ख्याल रखोगे, more than two alleles का मतलब ये नहीं होगा कि इनफाइनाइट alleles. more than two alleles का मतलब हुआ 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है ना. So when a gene is represented by more than two alleles located on the same locus on a homologous chromosome, उसको हम बेटा बेसिकली बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म. तो एक ही जीन होगा, जब उस जीन के दो से ज़्यादा कॉपीज़ होंगे, उन दो से ज़्यादा कॉपीज़ को हम नॉर्मली बोलते हैं एलिल्स, जो लोकेटेड होंगे ऑन द सेम लोकस. लोकस इज बेसिकली अ पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम वायर द जीन इज लोकेटेड ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम. ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन सिमिलर होगा. और होमोलॉगस क्रोमोसोम आप हमेशा याद रखोगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो जीन्स होंगे दे डज नॉट शो व्हाट वी कॉल एज ए क्रॉसिंग ओवर ये नहीं दिखाते हैं, ये हमेशा आप याद रखोगे. एज कम्पेयर टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन्स डिसिमिलर होगा, और वहाँ के जो जीन्स होंगे वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर दिखाते हैं. लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं हर एक लिहाज से, तो इसीलिए वो क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाएंगे. दे विल नॉट शो द क्रॉसिंग ओवर. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द व्हाट इज कॉल्ड द मल्टीपल एलिलिज्म. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेंगे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग की, इसको हम फिर अलग से डिस्कस करेंगे.
That is very important. Many, many objective multiple choice questions are asked from this concept of blood grouping. ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो इसमें आपके पास जीन आई होता है, जीन एक ही है, आई जीन है। उस जीन के कितने एलील्स होते हैं? उस जीन के नॉर्मली हमारे पास 3 एलील्स होते हैं। एक आई ए एलील होता है, एक दूसरा हमारे पास आई बी एलील होता है, और नंबर 3 हमारे पास आई एलील होता है। ये होते हैं इसमें 3 एलील्स। और बेस्ड ऑन द, अब जो प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलील्स दिए गए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इसमें कितने निकलेंगे। फॉर एग्जांपल वो फार्मूला जो है हमारे पास वो है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज बेसिकली फार्मूला दैट इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। बट हियर n का क्या मतलब हुआ? n बेसिकली रेफर्स टू द नंबर ऑफ बेसिकली एलील्स, नंबर ऑफ एलील्स। तो यहाँ हम यही से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इसमें कितने निकलेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 एलील्स हैं, 1 2 एंड 3। सो ये आ गया 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई द 2। सो ये आ गया 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई द 2, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 जीनोटाइप्स होंगे आपके इस ब्लड ग्रुपिंग में। ब्लड ग्रुपिंग को बेसिकली कंट्रोल करने हैं 6 जीनोटाइप्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास फार्मूला है, ये आप याद रखोगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एलिज्म का क्या मतलब है। एक ही जीन है, जीन आई है, बाद में हम देखेंगे आई का बेसिकली क्या, आई बेसिकली रेफर्स टू isoagglutinogen is basically another term used for what we call the antigen. So जीन आपके पास आई है तो उसके मोर देन 2 अलील्स है, ये पहला अलील है, ये दूसरा अलील है, ये तीसरा अलील है। तो इस बेसिकली इस फिनोमेना को हम बेसिकली बेटा बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। नाउ सेकंड जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एक होता है मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म। इसको हम थोड़ा डिस्टिंग्विश करें किससे? पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। ज़रा देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, 2-4 डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल एलीलिज्म क्या मतलब हुआ और पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ। मल्टीपल एलीलिज्म का क्या मतलब हुआ? जब आपके पास एक ही कैरेक्टर होगा, उसको कंट्रोल करेगा only a single gene. When a character is controlled by a single gene, that is basically called the multiple allelism. But in case of the polygenic inheritance, if you try to focus on the term poly का क्या मतलब हुआ? मनी। जीनिक का मतलब हुआ जीनस। इनहेरिटेंस का मतलब हुआ how the characters when the inheritance, that means when the transmission of characters from parents to offspring is controlled by many genes. Polygenic का मतलब है when many genes are able to, I will write here, for example, when many genes are able to control a particular type of what we call as a character, that is basically called the polygenic inheritance. So इसमें क्या होगा? इसमें एक ही कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर फिर से एक ही होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करेंगे क्या? एक से ज़्यादा जीनस, मनी जीनस। When many genes are able to control a single character, that is basically called the polygenic inheritance, ठीक है ना। नंबर सेकंड डिफरेंस इसमें अगर मल्टीपल एलिज्म की बात बेटा करें तो मल्टीपल एलिज्म में हमेशा इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल जीन होगा, इसमें एक ही जीन इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होगे? इसमें हमेशा मनी जीन्स इन्वॉल्व होंगे। Many genes are involved in controlling this type of inheritance, and that inheritance is called polygenic inheritance. Number third वो जो अलील्स होंगे, क्योंकि इसमें एक ही जीन है तो जीन जो होगा वो सिंगल जीन को होगा, उसके जो, क्योंकि मल्टीपल एलील्स है, मोर देन 2 एलील्स होंगे, वो अलील्स जो होंगे वो सारे लोकेटेड होंगे ऑन द, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द सेम लोकस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वो जो जीन्स होंगे दैट दे विल बी लोकेटेड इन द डिफरेंट लोकस, सेम लोकस पे वो लोकेटेड नहीं होंगे। इसमें इन्वॉल्वमेंट बेसिकली होते हैं, इसमें just a second तो चलिए, तो इसमें क्या होगा? मल्टीपल एलीलिज्म में बेटा क्या होगा कि मल्टीपल एलीलिज्म में हमेशा, जब हम मल्टीपल एलीलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म में क्या होगा? इसमें हमेशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होगा। होमोलॉगस, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। लेकिन जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमेशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या होगा? इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन होमोलॉगस
इसमें हमेशा इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है ना बेटा। तो जस्ट कीप इन माइंड, होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन सिमिलर होगा, जो क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाते हैं। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन डिफरेंट होगा, और वो जो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें वो जो जीनस होंगे वो हमेशा कौन सी प्रोसेस दिखाते हैं, क्रॉसिंग ओवर दिखाते हैं। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, मल्टीपल एलिज्म जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली डिफाइन करते हैं किन ट्रेट्स को, qualitative traits. They basically define the qualitative traits, while as if we talk about the polygenic inheritance, they basically define the quantitative later on we'll see the example, quantitative traits they basically define करते हैं। Number next difference, if we talk about the influence of environment on these two important concepts, that is multiple allelism and polygenic inheritance. Here in case of the multiple allelism, environment has no influence, environment has no influence on what we call the multiple allelism, but इसकी अगर हम बात करें इस polygenic inheritance में आपका environment it basically influence करता है, it basically influences the what we called as the it basically influences the traits, that are basically controlled by the polygenes, that means many genes। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल एलिज्म में सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक ही करेक्टर है, दैट मीन्स ब्लड ग्रुपिंग इज बेसिकली सिंगल करेक्टर दैट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, बट दैट जीन हैज बेसिकली गॉट मोर देन 2 एलील्स। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की अगर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल हाइट हाइट के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, इसके वेरिएंट्स हो सकते, कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी फॉर एग्जांपल जो 5 फीट होगा, कोई 6 फीट होगा, कोई 7 फीट होगा, कोई 8 फीट होगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं, ये बेसिकली इन कैरेक्टर्स को बेसिकली इन कैरेक्टर्स को बेसिकली कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जीन्स, और वो वाले जीन्स जो होंगे दे विल बी लोकेटेड ऑन द डिफरेंट लोकाई। नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ वेट भी होगा, वेट इज बेसिकली अ पॉलीजेनिक ट्रेट, ये भी इसके भी बहुत सारे इसके भी बेटा बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। कोई बंदा ऐसा होगा जिसके फॉर एग्जांपल वेट 30 kg होगा, 40, 50, 60, 70 व्हाट्स एवर इट में भी, ठीक है ना। सो बहुत सारे वेरिएंट्स इसके हो सकते हैं। नंबर थर्ड, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, इंटेलिजेंस, ठीक है ना, इंटेलिजेंस IQ जो होगा, IQ भी बेसिकली क्या, इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। किसी का IQ से कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का इंटरमीडिएट होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल स्किन कलर की बात करें, स्किन कलर इज़ बेसिकली आल्सो कंट्रोल्ड बाय व्हाट वी कॉल्ड एज अ मनी जीन्स। सो इसके भी, इस स्किन कलर के भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे बेटा वेरिएंट्स हो सकते हैं। सो these are the some important differences between the what we call as a multiple allelism and the polygenic inheritance. Now let us see the concept of what we call the ABO blood grouping. This is very important, this is most important, I will write here most important, because many multiple choice questions are asked from this important topic called as a ABO blood grouping. Now let me tell you what does basically, let us talk about, let me write here it is A, here it is B, here it is AB, and here it is O. These are the 4 types of blood groups present in the human population. Now how we can say कि a person has got a blood group A, how we can say कि a person has got a blood group B, how we can say कि a person has got a blood group AB, or what we call as a O blood group. Let me explain all this. A person is said to have a blood group A if on the red blood cell, these every time we will just include the red blood cell. We don't have to deal with the what we call as the white blood cells, or what we call as a platelets, or what we call as these thrombocytes. We have to always, whenever we talk about the blood group, you will just keep in mind this important cell called as the red blood cell. So a person is said to have a blood group A if on the surface of the red blood cell there is present an antigen, and that antigen is called antigen A.
एंटीजन ए। लेकिन एंटीजन होता बेसिकली क्या है, एंटीजन जैसे एंटीजन इज बेसिकली ए ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब हुआ, ग्लाइको, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, दैट मीन्स व्हेन a carbohydrate is attached with an amino acid sequence, because amino acids are basically called the polymers of proteins. So a structure that is made up of a carbohydrate plus protein, that is basically called the glycoprotein. और ये एंटीजन जो होते हैं बेटा, ये एंटीजन क्या होते हैं बेसिकली, ये एंटीजन होते हैं बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। सो एक बंदे को आप बोलते हो कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, it is because of the fact that once we will try to see his red blood cell, on the surface of the red blood cell you will find this antigen A, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरा पैरामीटर देखिए, उसके प्लाज्मा की तरफ अगर हम बात करें, उसके प्लाज्मा में क्या होगा, उसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी, ये हमेशा आप याद रखोगे। तो दिस इज द फर्स्ट ब्लड ग्रुप दैट वाज कॉल्ड एज द ब्लड ग्रुप ए। लेटर ऑन वी विल सी इट इज जीनोटाइप्स, देयर आर मेनी parameters associated with these blood groups. Number B blood group, a person is said to have a blood group B if on the red blood cell there is this antigen called as this antigen B। एंटीजन फिर से क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होगा। लेकिन उसके प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में इसके पास एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है ना। तो नंबर थर्ड है ए बी का क्या मतलब हुआ, ए बी का मतलब हुआ आपके पास उसके रेड ब्लड सेल जो होगी, उसके सरफेस जो होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके उस सरफेस पे क्या होगा, उस सरफेस पे दोनों ये एंटीजन होंगे, एक एंटीजन ए बी होगा, लेकिन उसके सरफेस पे दोनों एंटीजन बी भी होगी, ANTIGEN, एंटीजन बी भी होगी। तो a person is said to have a blood group AB if on the surface of the red blood cell there is presence of both antigens, antigen A and antigen B। लेकिन उसके प्लाज्मा, that is very important, प्लाज्मा में कोई भी नो एंटीबॉडी, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। इसीलिए बिकॉज देर इज नो व्हाट वी कॉल्ड एज दिस एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा ऑफ दिस ए बी पेशेंट, दिस ए बी ब्लड ग्रुप इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल, it is called a universal acceptor। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का क्या मतलब हुआ बेटा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब हुआ दिस ए बी पेशेंट it has got a property that it can accept the blood, it can accept the blood from A, it can accept the blood from AB, it can accept the blood from AB, and it can also accept the blood from O। how it is possible, because one is the, for example, we will take the example, for example, one is the blood from A patient will be transferred into this AB, so ए के सरफेस पे जब रेड ब्लड सेल इसके ए बी के ब्लड में पहुंच जाएगी, तो इसके रेड ब्लड सेल पे इसके सरफेस पे एंटीजन ए है, लेकिन अब एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए ही काम करेगी, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसीलिए ये रिजेक्ट नहीं होगा, रादर इट विल बी एक्सेप्टेड। सेम इज द केस, अगर बंदे बी का ब्लड लेंगे, तो इसका ब्लड हम डाल देंगे किसमें, ए बी वाले में, तो ये फिर से एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि बी के रेड ब्लड सेल पे कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, उसके खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी होनी चाहिए, एंटीबॉडी बी, लेकिन यहाँ तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, so that's why it is called a universal acceptor। third is called a blood group O। blood group O, a person is said to have a blood group what we call as O if there is no antigen on the surface, when there is no antigen on the surface of the red blood cell, we call this person as having the blood group O। लेकिन उसके अगर प्लाज्मा की बात करें बेटा, प्लाज्मा में बोथ एंटीबॉडीज होंगी, दोनों एंटीबॉडी का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स इसमें एंटीबॉडी ए भी होगी प्लस एंटीबॉडी बी भी होगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस ओ वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, इसको बेटा हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर का क्या मतलब हुआ, इट कैन डोनेट ब्लड टू द ए, it can donate blood to the what you call the B, it can donate blood to the AB, and it can also donate blood to the O। let us see how। see, for example, one is the O will, for example, if the O will give blood to the A, if the O will donate the blood to the A, it will be accepted by the A। why? because on the surface, one is the blood from the O patient will be transferred into the A will start making, for example, antibodies, but it can't make the antibodies,
It can't make the antibodies. Why? Because there is no antigen present on the red blood cell of this O patient. इसी तरह अगर ओ ब्लड जो होगा फॉर एग्जांपल ओ ब्लड को अगर हम डालें किसमें, फॉर एग्जांपल बी में, ये फिर से एक्सेप्ट होगा। क्यों एक्सेप्ट होगा? क्योंकि इस ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे की जो रेड ब्लड सेल होगी उस पर एंटीजन है ही नहीं कोई। जब एंटीजन है ही नहीं कोई तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यू विल जस्ट कीप इन माइंड कि ओ को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का क्या मतलब हुआ? इट इज़ एबल टू डोनेट ब्लड टू ऑल द पेशेंट वेदर इट इज़ ए बी और ओ। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन। ठीक है ना? तो ये तो हो गई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड एज द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड द एंटीबॉडी। लेकिन आप हमेशा याद रखोगे ये एंटीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक टर्म से आइसोएग्लिटिनोजन। बिकॉज आगे हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म में, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा, मैंने आपको एग्जांपल बताई थी आई इज बेसिकली जीन दैट हैज़ गॉट 3 एलिल्स IA, IB, II। आई बेसिकली स्टैंड्स फॉर आइसोएग्लिटिनोजन। आइसोएग्लिटिनोजन ये है, आइसोएग्लिटिनोजन इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर द एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडी जो होगी, एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्लूटिनिन, AGGLUTININ, एग्लूटिनिन इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर द व्हाट वी कॉल द एंटीबॉडी। तो ये चीज़ आप फिलहाल याद रखोगे। आप ज़रा आगे बढ़े, ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे अगर ऑकरेंस की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑकरेंस की बात हम करें कि ऑकरेंस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज़ मोस्ट एबंडेंट ब्लड ग्रुप विच इज़ द ब्लड ग्रुप दैट इज़ इन द लीस्ट कंसंट्रेशन दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, वी हैव सबसे मोस्ट एबंडेंट जो आपका ये ब्लड ग्रुप होता है बेटा, वो होता है पहले ओ सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है। ठीक है ना? उसके बाद आपका होता है ए, उसके बाद आपके पास होता है ए, ठीक है ना? उसके बाद आपका होता है बी, और फिर सबसे कम होता है आपका ए बी। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा ए होता है, उसके सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप ए होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद बी होता है, और सबसे कम सबसे ये हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट और ये होता है लीस्ट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। यू जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है ना? तो अब हम ज़रा देखिए, आप जीनोटाइप्स की बात करें, चले जीनोटाइप्स की बात करें तो फिर से आपके पास ए है, फिर से आपके पास बी है, फिर से आपके पास बेटा ए बी है, और फिर से आपके पास ओ है। ठीक है ना? ए की अगर बात करें, ए जो होगा, ए इज बेसिकली रिप्रेजेंट, आई हैव टोल्ड यू द फार्मूला। वी हैव द 3 एलिल्स नाउ, वन इज IA, second is IB, third is II, and if we have the 3 alleles, so the total number of genotypes we should get is that 6 genotypes we have to keep in mind while discussing the genotypes of these blood groups. So A जो होगा, A is basically represented by IA and II, small I. ठीक है ना? These are the genotypes representing the blood group A, while as the B is represented by IB and IBII. These are the two genotypes representing the blood group B, while as the AB is represented by only IAIB, while as this O is represented by I small I. So these are two in number, these are also 2 in number, and these are 1 in number, this is also 1 in number. So total number of genotypes इसमें कितने आते हैं बेटा? Total number of genotypes इसमें कितने आते हैं? 6. So there are 6 genotypes which basically control these 4 important blood groups, that is A, B, AB and O. Now you will just keep in mind, let me tell you an interesting example. Inshallah in the next video I will discuss with you people the different problems associated with what we call this blood grouping first. Number second, I will discuss with you very important concept that is called H substance किसको बोलते हैं? In the next video I will discuss what does H substance mean. H substance का मतलब हुआ basically, normally you just keep in mind कि अगर आपके पास ये रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल जो होगा, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं H substance. H substance is basically a combination of, you just keep in mind, it is basically a combination of sugars.
कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर्स। और वो जो शुगर्स होंगे वो कितने होते हैं, वो नॉर्मली 3 होते हैं। एक को बोलते हैं 3 शुगर, एक को बोलते हैं, एक होता है आपके पास एन एस्टाइल, एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन, ग्लूकोसेमाइन, एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन। नंबर सेकंड होता है बेटा FUCOSE फ्यूकोस, नंबर होता है फ्यूकोस, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड होता है ग्लेक्टोस, GALACTOSE। ये एस सब्सटेंस जो होता है, हर एक बंदा जो होगा, जितने भी ह्यूमंस होंगे उनके रेड ब्लड सेल फेस पे ये क्या होगा, ये एच सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, एच सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। और ये एच सब्सटेंस क्या है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट शुगर्स, दैट इज एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन, फिर होगा फ्यूकोस, फिर होगा आपका ग्लेक्टोस। अब फिर क्या होता है बेसिकली, आई विल टेल यू, लेट मी कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ वी टॉक अबाउट द IA एलील, IA एलील जो होता है ना, आई एलील क्या बेसिकली करता है, क्योंकि ये एलील है, एलील बेसिकली एनकोड करेगा किसी एंजाइम को, ये बेसिकली एंजाइम को एनकोड करेगा, और वो एंजाइम जो होगा वो बेसिकली ऐड करेगा और एक इस कार्बोहाइड्रेट को, उसको बेटा बोलते हैं हम एन एसिटाइल, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये CSIR में भी आता है, उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लेक्टोसेमाइन, ग्लेक्टोसेमाइन। ऊपर आपके पास है एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन, हियर आपके पास है एन एस्टाइल ग्लेक्टोसेमाइन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए पेशेंट विच इज़ हैविंग ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा जो होगा ना, इसका मतलब है उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास एच सब्सटेंस तो सबके पास है, एच सब्सटेंस प्लस होगा आपके पास ये एन एसिटाइल ग्लेक्टोसेमाइन, ग्लेक्टोसेमाइन। इसका मतलब हुआ उसके पास एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन होगा, फिर उसके पास दिस फ्यूकोस होगा, फिर ग्लेक्टोस होगा, प्लस होगा एन एस्टाइल ग्लेक्टोसेमाइन। सेकंड जो बंदा जो IB वाला होगा, जो IB वाला होगा, IB एलील जो होगा, IB एलील क्या करता है, IB एलील भी बेसिकली एंजाइम को क्रिएट करेगा, एंजाइम को बनाएगा, और वो जो एंजाइम बेटा होगा ना, वो बेसिकली ऐड करेगा अपने इस 1 सेकेंड, चलिए, तो वो जो IB एलील होगा बेटा, IB एलील भी एनकोड करेगा किसी एंजाइम को, वो एंजाइम जो होगा वो एंजाइम भी बेसिकली ऐड करेगा किसी कार्बोहाइड्रेट को, और वो जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो होगा बेसिकली ग्लेक्टोज, GALACTOSE, ग्लेक्टोज। मुझे याद है जब मैंने CSIR दिया था एक बार, तो उसमें पूछा गया था कि बी वाले पेशेंट जो होते हैं ब्लड ग्रुप वाले, वो कैसे हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ, फिर नीचे ऑप्शन आई थी, तो वहाँ पर ऑप्शन थी ग्लेक्टोज। तो अब IB एक ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप B होगा ना, B ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, तो उसका क्या मतलब हुआ, एच सब्सटेंस तो सबके पास है, मैंने पहले ही बताया आपको, तो इसमें इसका मतलब हुआ उसके पास एच सब्सटेंस होगा प्लस और एक मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, ग्लेक्टोस होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ए पर्सन विच इज हैविंग ब्लड ग्रुप B, ही कंटेन्स हाउ मेनी कॉपीज ऑफ ग्लेक्टोस, 2, क्योंकि एच सब्सटेंस तो एन एस्टाइल ग्लूकोसेमाइन है, फ्यूकोस है, ग्लेक्टोस है, लेकिन IB एलील भी क्या करेगा, IB एलील भी बेसिकली क्या बनाएगा, ये भी बेसिकली ग्लेक्टोस बनाएगा। तो इसमें आपके ये 3 होंगे प्लस होगा ग्लेक्टोस। इसका क्या मतलब है, और वी कैन से कि दिए a patient which is having a blood group B, it will be characterized by the presence of how many molecules of galactose, 2। एक तो एस सब्सटेंस का एक हुआ, ये एक हो गया, और फिर IB एलील, तो ये हो गया दूसरा, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास थर्ड होता है, थर्ड होता है ब्लड ग्रुप, कौन सा, थर्ड होता है IAIB। तो इसका क्या होगा ब्लड ग्रुप, इसका बेसिकली बेटा होगा ब्लड ग्रुप क्या, ब्लड ग्रुप होगा AB। तो ये पर्सन विच इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप AB, इसका मतलब उसके पास एच सब्सटेंस होगा, प्लस ईदर EITH, दोनों नहीं, ईदर ये एन एस्टाइल ग्लेक्टोसेमाइन होगा, या तो बेसिकली होगा ग्लेक्टोस, ईदर NACETYL, एन एस्टाइल ग्लेक्टोसेमाइन, और देयर विल बी GALACTOSE, ग्लेक्टोस। तो ये आप सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश AB एंड AB। अब चौथे की बात भी करते हैं, I। अब ये एलील जो होगा I एलील, ये क्या करेगा, ये इट विल नॉट ऐड एनी शुगर। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिन बंदों का ब्लड ग्रुप O होगा, दे विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली वन व्हाट वी कॉल द एच सब्सटेंस,
ठीक है ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हमेशा याद रखोगे आप एज सबस्टेंस क्या होता है। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपके पास एक नया कंसेप्ट है। एज सबस्टेंस इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ शुगर्स दैट आर लोकेटेड on the surface of the red blood cell. What is S substance? S substance is basically a combination of three sugars, that is N-acetyl glucosamine, fucose and galactose. Then if a person is, for example, having a blood group A, we can say IA allele जो होगा, I allele basically encode करता है एंजाइम को, वो एंजाइम ऐड करता है N-acetyl galactosamine। इसके बाद इसका मतलब हुआ उस पेशेंट का जिसका ब्लड ग्रुप A होगा उसके पास S सबस्टेंस होगा प्लस N-acetyl galactosamine होगा। आई भी एलील ऐड करेगा एंजाइम को और वो एंजाइम ऐड करेगा गलेक्टोज को। इसका मतलब है बी वाला ब्लड ग्रुप जो बंदा होगा उसके पास एस सबस्टेंस होगा प्लस गलेक्टोज होगा। इसका मतलब है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गलेक्टोज 2। सेम होगा आपके पास थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। थर्ड वाला आई भी होगा क्योंकि इसमें दोनों एलील्स आएंगे, वो दो एलील्स या तो ऐड करेंगे इस एन एस्टाइल ग्लेक्टोसामाइन को या तो ग्लेक्टोज को, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसमें एच सबस्टेंस तो होगा प्लस होगा इधर एन एस्टाइल ग्लेक्टोसामाइन और व्हाट वी कॉल्ड एज अ ग्लेक्टोज। और चौथा आपके पास है आई एलील। आई एलील कोई भी ऐड नहीं करता है शुगर। सो a person which is having a blood group O, it contains only the H substance. That is the most important concept you will just keep in mind. अब मसला अब कन्फ्यूजन आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैसे डिस्कस करते हैं। अगर हम बोलते हैं एक बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव को हम डिनोट करते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल जो होगा, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे फिर से और एक ग्लाइकोप्रोटीन होगा, उसको हम बेसिकली बोलते हैं RH एंटीजन। एक ऐसा पर्सन जिसके सरफेस पे ये ग्लाइकोप्रोटीन होगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। एक ऐसा पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल्स पे नो RH होगा, रहसस एंटीजन नहीं होगा, तो उसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव से, तो अगर मैं आपको बोलूँ ये मेरे पास बंदा है, तो ये उसकी रेड ब्लड सेल है, इसके सरफेस पे एंटीजन A है और उसके सरफेस पे दूसरा एंटीजन है, फॉर एग्जांपल RH एंटीजन, तो इसका ओवरऑल ब्लड ग्रुप क्यों होगा, तो इट विल बी A पॉजिटिव। अगर दूसरा एक बंदा है, ये उसकी रेड ब्लड सेल है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, इसका मतलब है उसके सरफेस पे खाली कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन A, तो इसका मतलब है ये A नेगेटिव होगा, उसके सरफेस पे RH एंटीजन नहीं होगा। अगर थर्ड आपके पास ये रेड ब्लड सेल है, उसके पास A भी है, उसके पास B भी है, उसके पास RH एंटीजन भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका मतलब हुआ AB पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। सो यू विल जस्ट मेमोराइज दिस टॉपिक्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू डियर्स।